very important topic today. Is your child really having low immunity? Welcome to this session with BabyChakra. Before we kickstart our topic, let me give you a small introduction to BabyChakra. BabyChakra is the largest platform for pregnant and new parenting. Uh, we are trying to get the new parents to connect with experts in the field who can get research based and valuable information to the table. On that note, let's kickstart our conversation. Welcome, Dr. Simran Bagwan. Hi, good morning. Welcome. Good Thank you. morning. Can you please introduce yourself to the audience? So I'm Dr. Simran Bagwan, and I'm from Kalyan, Maharashtra right now. And I'm a homeopath, I'm a lactation professional, and I'm a mother, infant, young child, and adolescent nutritionist. Okay. Thank you, Dr. Simran. So this primary immune deficiency that is present at birth, it puts children in constant risk of infections from bacteria, fungi, and viruses. Over a period of time, as the system matures, the children can also fight the infections much better. Can you please answer some of our questions so that we can address this topic in depth? Yeah, sure. Uh, Yes. So we'll start with what does immunity really mean and how should we check that? Okay, so immunity is basically an innate response of the body to the pathogens or any foreign body which enters our body, and it is a reaction to the action of the pathogen or any foreign particle which has entered our body. So it is mostly powered by the white blood cells in our body, which again has neutrophils, basophils, etc. And that is the like army of our body, immune system, which is helping us to fight against everything. So uh, that is how we can encounter all infections. Like जो भी infection अपने body में होता है वो सब ये हमारी immunity के वजह से हम उसको रोज treat कर पाते हैं. जब भी हम रोज बाहर जाए, कोई भी हमको germ है, pathogen है, वो हमारे शरीर में जब आ जाता है तो हम उसको easily fight कर पाते हैं क्योंकि हमारी immune system हमारा काम कर रही होती है जो कि हमारे body की army है. Right. So all the food that we consume at home, our home cooked food, does it help with this immunity or is there something else that we should introduce to our children for this? या बेसिकली जो हम खाना घर पे बना के खाते हैं वो सब इम्यून से मतलब इम्यून को हेल्प करने वाला होता है. जैसे कि हम घर पे जो भी बनाते हैं उसमें हल्दी डलती है, उसमें कभी इमली डलती है, नींबू होता है, कोई भी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, गरम मसाले होते हैं. इंडिया में गरम मसालों का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो Yes. जो भी गरम मसाले वो सब इम्यून को एम्पावर करते हैं, हमारे बॉडी को नरिश करते हैं. जो दाल है, जो दूध है, जो मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस सभी के बारे में मैं कहूँगी कि जो प्रोटीन रिच फैट रिच सोर्सेस है वो सब हमारे इम्यूनिटी यानी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, जो आर्मी है हमारे बॉडी का, उसको एम्पावर करने में हेल्प करता है, क्रिएशन में मदद करता है न्यू बॉडी सेल्स के. और दैट इज हाउ घर पे बनाया हुआ खाना ताज़ा रहता है और पोषण युक्त रहता है, इसलिए हम उससे ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी पा सकते हैं. हमारे शरीर को वो ज़्यादा किफ़ायती होता है. Okay. थैंक यू डॉक्टर सिमरन. कुछ क्वेश्चंस है जो पब्लिक ने हमें भेजे हैं. लेट्स ट्राई टू आंसर सम ऑफ दोज. The first question comes from someone who says that my child has white lines on his nails. Does that mean my child has low immunity and what should I do to increase my child's immunity? Yes, so basically white lines on face, white lines on nails, some spots on face, ये सब indicators होते हैं कोई विटामिन की deficiency के. So जब हमारे शरीर में कोई विटामिन की कमी हो जाती है, that is when we feel मतलब these external like this cutaneous things like skin के ऊपर ये show होना शुरू हो जाता है. तो जब आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि मतलब ये विटामिन का डेफिशिएंसी है, वो विटामिन का डेफिशिएंसी. आपको टेम्पररी मेडिकेशन भी मिलेगा बट लॉन्ग टर्म में वो हेल्प नहीं करने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली डाइट न्यूट्रिशन इज वेरी
इम्पोर्टेंट, बच्चों को मतलब जब यूजुअली हम खाना खाते हैं तो 80 to 90% जो होता है खाना वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। जब हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो हार्डली 40% ही बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम न्यूट्रिशन के थ्रू जो हम हासिल करना चाहते हैं, विटामिन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, जो भी नरिशमेंट है वो सब हम नेचुरल फूड और नेचुरल प्रोडक्ट से हासिल करने की कोशिश करें। तो जो व्हाइट लाइन्स है, इट कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, इट कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एच, और भी अगर कुछ सिम्टम्स रहेंगे उसके साथ तो वी कैन जस्ट ट्राई एंड कोरिलेट क्लिनिकली कि ऐसा है। तो घर पे बनाया हुआ पोषण युक्त आहार जो प्रोटीन में रिच हो, जो फैट में रिच हो बच्चों के लिए, और यूजुअली शुगर कम रहनी चाहिए खाना में, बिकॉज मीठा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मीठा एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी में वाटर को भी कम कर सकता है और आपके इम्यून को भी थोड़ा कमज़ोर कर देता है। सो आपने जस्ट मेंशन किया कि खाना प्रोटीन रिच होना चाहिए। सो ये जो प्रोटीन पाउडर्स है मिलते हैं बच्चों के लिए, आर दे सेफ फॉर द किड्स? शुड वी गिव देम दीज प्रोटीन पाउडर्स? प्रोटीन पाउडर जो बच्चों के लिए मिलते हैं बेसिकली उसमें दो टाइप्स रहते हैं, एक तो सोय प्रोटीन रहता है या तो वे प्रोटीन रहता है, और अभी आइसोलेट प्रोटीन वगैरह ऐसा भी रहता है, मतलब नॉट फॉर चिल्ड्रन ओनली बट इन जनरल एडल्ट्स के लिए भी ऐसे होता है। तो बेसिकली व्हाट द थिंग इज कि ये जब बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियली तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कई सोर्सेस से उनके वगैरह। सो इट इज लाइक नॉट कम्प्लीटली बैड, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर किडनी समवेयर, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर ग्रोथ समवेयर ऐसा। और उसमें कुछ वैरायटी तो है नहीं, प्रोटीन पाउडर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन प्रोटीन पाउडर। बट जब हम घर पे अच्छा स्वादिष्ट खाना जो बनाते हैं जो पोषण युक्त भी होता है तो बच्चे बड़े चाव से खा भी लेते हैं कि आज रागी का इडली बनाया, कल ज्वार का कोई डोसा बना लिया। सो ऑल दीज मिलेट्स, मतलब जो ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मतलब और राजगीरा, ऐसे सब जो मिलेट्स है हमारे जो भारतीय संस्कृति में काफी इनका मतलब यूज होता है। तो ये सब मिलेट्स और दाल से और सब पल्सेस है, जैसे हरी मूंग है, अक्खा मसूर है, ये सब चीजें जो होती है जो हमारे खाने में, राजमा छोले रोज आते जाए ना, तो वैरायटी भी बनता है बच्चों के लिए, हम बहुत कुछ बना सकते हैं और बॉडी को एब्जॉर्ब भी ज्यादा कर पाती है बॉडी वो, और प्रोटीन पाउडर के हिसाब से मोर इफेक्टिव है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय रेगुलर प्रैक्टिस एंड दैट इज व्हाट आई सजेस्ट माय पेशेंट्स। ओके। एंड व्हेन डू वी रियलाइज दैट देर इज कंसर्न, मतलब मेरे बच्चे में कुछ इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है या हो सकता है, ये हमें कैसे पता चले? एंड देन अगर पता चलता है तो व्हाट मेजर्स शुड वी टेक? यस, फर्स्ट कंसर्न इज कि बच्चा थका हुआ रहता है, बच्चे को इंथुजियाज्म नहीं होता है कि हाँ भाई सुबह उठ के स्कूल जाना है। सो द चाइल्ड इज ऑलरेडी क्राइंग, चाइल्ड इज डूइंग सम प्रैंक्स कि मेरा पेट दर्द हो रहा है या फिर आज मुझे नहीं जाना है, या अननेसेसरीली क्राइंग। सो द चाइल्ड इज नॉट इन एन इंथुजियाज्म टू डू डेली एक्टिविटीज, खेलने के लिए भी चाइल्ड रेडी नहीं है। और अगर छोटे बच्चों के बारे में देखा जाए तो दे विल जस्ट कीप लाइंग इन बेड, दे विल ऑलवेज आस्क फॉर सम टीवी और सम मोबाइल एंड दे विल जस्ट सिट एंड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू ऐसा। तो मतलब एंथुसियाज्म, एक्टिविटी जब बच्चों में कम होने लग जाए तब हमें समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। सेकेंडली, बच्चों के हेयर, नेल्स कैसे ग्रो होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। स्किन की शाइन कैसी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो मेरे बच्चे की स्किन तो बड़ी सॉफ्ट हुआ करती थी, शाइन करती थी, अभी तो ड्राई हो गई है, अभी तो उस पे ये धब्बे आ गए हैं एंड lots of stuff. So all these are indicators कि there is some problem with the body. फर्स्टली, ऐसे भी हो सकता है कि बच्चा खाना अच्छे से खा रहा है तो भी वो दुबला ही रह रहा है, उसका जो वेट गेन है, हाइट गेन है, जो आइडियली एक पीडियाट्रिशियन जो आपको सजेस्ट करता है चार्ट उस हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो क्या कोई पैथोजन बॉडी में रिसाइड कर रहा है, मतलब वर्म इन्फेस्टेशन है क्या, जो हम बोलते हैं जंत हो गया पेट में, वैसा कुछ है क्या, वो भी देखना जरूरी है।
बच्चे के ब्लड इंडाइसिस कैसे है, हीमोग्लोबिन कैसा है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी काउंट, वो सब भी देखना जरूरी है। कोई इन्फेक्शन बॉडी में है क्या, कोई कॉफ कोल्ड है क्या, फीवर बार बार आ रहा है क्या, ये सब को रूल आउट करने के बाद भी अगर ये चीज़ें परसिस्टेंट रहती हैं तो दिस इज सम डेफिशिएंसी, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू सी कि डाइट से बच्चे को कुछ मिल रहा है या कुछ मिसिंग है, या फिर हमें चाहिए कि हम रूल आउट करें कि डाइट बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहा है क्या, इज द चाइल्ड एलर्जिक टू सम सब्सटेंस, इज द चाइल्ड नॉट एबल टू डाइजेस्ट सम सब्सटेंस, जैसे ग्लूटेन एलर्जी होती है या फिर मिल्क हाँ। प्रोडक्ट्स की एलर्जी होती है या पीनट्स वगैरह ऐसे कुछ नट्स की एलर्जी होती है। तो ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी टेकन इन कंसर्न, टेकन इन योर ऑब्जर्वेशन and taken into consideration along with a pediatrician, and that is how you can evaluate what works the best for your child, and that is how you can perform whatever is needed for that specific developmental goal to be achieved. ओके। और ये जो इम्यून सिस्टम है, जो हाउ मच टाइम, हाउ मेनी इयर्स और सो डज इट टेक फॉर द इम्यून सिस्टम टू मैच्योर, यू नो? Yeah. So basically, immunity is maturing like the most. First of all, the most of the part is in the first 5 years, like when the राइट। spleen is active. After that, when the bones start ossifying, the red like the bone marrow in our body and various other systems are there, like which will help in this. As we say, like gut is the most important part of our body. तो हमारा गट मेन होता है, तो जो हम खाएंगे वो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड फेस इज द इंडेक्स ऑफ बॉडी। सो फेस पे तो हमको नजर आता है कि जो भी गड़बड़ हो वो तो पहला फेस पे दिखना चाहिए। तो दैट इज देयर। एंड अगर हमारा पेट अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, तो बहुत सारी बीमारियां उधर ही खत्म हो जाती है। तो बेसिकली हमको चाहिए कि हम इम्यूनिटी के लिए बच्चों को, मतलब ये शुरुआत तो प्रेगनेंसी से हो जाती है मदर के, उस बच्चे के, लाइक प्रेगनेंसी में कैसा खाना है मदर का, वहां से बच्चा डेवलप होना शुरू होता है। देन आफ्टर दैट जब बच्चा पैदा होता है तो इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है। ब्रेस्ट फीडिंग 100% होना चाहिए। अगर फॉर्मूला फीडिंग पे कोई वजह हो सकती है कि बच्चा फॉर्मूला पे फीड करे, तो वो फॉर्मूला फीडिंग किस तरह से हो रहा है और बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके स्टूल्स कैसे है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बाद में कैसे है कि बच्चा कितना खा रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी बीइंग टेकन इन, वो उसका बच्चे के वेट गेन पे, हाइट गेन पे, फिर हेड सरकमफेरेंस, मिड आर्म सरकमफेरेंस, देन मिड थाई सरकमफेरेंस, इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों को हमें देखना है। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो तो बड़े चूजी हो जाते हैं कि हमें ये खाना है, वो खाना है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मदर एंड द फैमिली मेंबर्स कि हम कैसे करें उसे। तो बेसिकली वही हमें ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन को हम कैसे पावर पैक कर ले, और न्यूट्रिशन को हम कैसे बच्चों तक पहुंचाने की मतलब एफर्ट्स ले। टिफिन में बच्चों के हम क्या दे रहे हैं, बच्चा घर पे आने के बाद क्या खा रहा है, ये सब उतना इक्वल इम्पोर्टेंट है। यस डॉक्टर सिमरन, थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा, न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बिल्ड इम्यूनिटी। So we will get towards the conclusion of this session. Is there a key takeaway, to conclude? Do you want to say anything to our audience? Yeah, actually, I think there is a question from the audience over here. I can see like Yes, biscuits. yes, Yeah, yes. so refined foods जो होते हैं, जैसे मैदा है और मैदे से बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स है, केक्स है, बिस्किट्स है, ये सब का इंटेक जितना बच्चों में कम हो, एज आई प्रायरली मेंशन कि शुगर कम होना चाहिए बच्चों के डाइट में। इट विल ऑलवेज, जितना शुगर ज्यादा होगा उतना हैम्पर होती है ग्रोथ। ऐसा तो मीठा कम होना चाहिए। चॉकलेट्स है, कोई भी रिफाइंड फूड्स है, कोई भी रेडीमेड थिंग्स है, ये प्रोटीन पाउडर लाइक हॉर्लिक्स है, बोर्नविटा है, जो हम बोलते हैं कि बच्चों को दूध में मिला के हम खिलाए, तो ये सब चीज़ों में शुगर बहुत होता है। जो भी हम बाजार से चिप्स वगैरह लेके आते हैं उसमें सॉल्ट बहुत होता है, शुगर बहुत होता है। एंड आइडियली 1 ईयर के एज के अंदर
बच्चों को सॉल्ट और शुगर कम देना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए 1 ईयर तक, क्योंकि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसको इनफ सोडियम उसके ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है. If the child is being formula fed, then yes, you can think of some salt in consideration, and with the advice of a pediatrician or the lactation consultant or a nutritionist who they are seeing. ओके, सो ये जो मैदा है, मैदे से बनी हुई चीजें, ये खासतौर से नमकीन तो होती है या तो मीठी होती है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए. मैदा रिफाइंड प्रोडक्ट है, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए. जैसे मैंने कहा कि मिलेट्स है, मिलेट्स पे ज्यादा हम जोर दे सकते हैं. और मार्केट में तो अभी काफी चीजें मिल जाती है, लाइक जिसमें मिलेट्स हो, जो ऑर्गेनिक हो, जिसमें गुड़ डलता हो, शक्कर नहीं डलती हो. अगेन, शुगर, हनी एंड जैगरी आर द सेम सिस्टर्स, लाइक दे आर ऑल सिस्टर्स. तो शुगर का जो इफेक्ट है वही गुड़ का होता है और वही हनी का होता है. So ultimately, we have to keep everything in limited portion, and limited quantity should be fed, and the child should not be addicted to some only like one item. Like आज मैंने ये नहीं खाया तो like I will not do my activities वगैरह होता है सब बच्चों का. I want chocolate, I want that burfi, or I want this chips and all. Only then I will do my work. ऐसा तो ये एडिक्शन बच्चों का जो जिद होती है, इसे हमको केटर करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड दैट इज हाउ वी कैन हेल्प कि मतलब ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है ये उनके डाइट में ना आए, क्योंकि इनकी वजह से डाइजेशन के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. Digestion is very crucial for the health, for the development of the child, for the growth. अगर digestion proper रहेगा तो ही child अच्छे से grow कर पाएगा. If digestion बिगड़ जाता है refined products के वजह से, तो फिर growth hamper होना ही है. Yes, Dr. Simran. तो थैंक यू वेरी मच. ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स थे. और न्यूट्रिशन पे, डाइट पे हम और ज़्यादा केयरफुल रहेंगे विद आवर किड्स. एंड हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम में भी बहुत ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स शुड ईट दिस, और फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स शुड ईट दिस. एंड देन नाउ वी हैव डॉक्टर्स लाइक यू हु आर गिविंग वेरी गुड एडवाइस to the new mothers. So thank you very much. Is there anything that you want to say to the audience before we wrap up this session? Yeah, one take home message what I would like to mention is the spoken health tutorial बोल के एक channel है YouTube पे by Okay. IIT Bombay. So I recommend this to each and every patient of mine, wherever I find people, whosoever is sorting some information from me regarding nutrition, diet, or health. I will always suggest this channel. Like IIT Bombay ने बनाया है spoken health tutorial बोल के एक module है. So whenever you go on YouTube, just search for spoken health tutorial by IIT Bombay. Once you take that, search that, subscribe to the channel, or I would, I'm not favoring the subscription, but I'm just saying that you go through all the videos. It has everything right from the mothers, like adolescents, or to the child's adolescence, like what the adolescent girl should eat, the pre-pregnancy nutrition, pregnancy nutrition, then the breastfeeding, how to take care of the child, then complementary feeding, and the feeding of 5 to 6 year old, then the feeding of 11 to 12-year-old. Like each and every year, what recipes should be given, what should be the quantity, which dosa is giving how much grams of protein, and what dish is going to give you what kind of nutrition, and magnesium rich and sulfate rich and protein rich and fat rich. All these things are mentioned in all Indian languages. So basically, we should refer this channel. What I would suggest personally, that is my personal favorite, and all my patients have been giving me reviews regarding that. So just go through that channel, try and see what can be done best for your child, for yourself, because mother's health or the parents' health is equally important as much as that of the child. So, yeah, and another take home message would be, don't try to experiment things at home regarding what medicine or multivitamin or protein powder should be given to the child unless it is recommended by a doctor, a pediatrician, basically. So that should not be experimented at all. If a pediatrician has advised you, then you take according to the advice. Apart from that,
just go with the nutritious, best, and delicious home cooked food. Thank you, Dr. Simran, so much. And thank you for this resource. I'm sure all the mothers and fathers here will look it up and get some more information so that this session goes ahead in their life. And yes, like you said, the mother's health is just as important as the child's health, right? Yeah, Thank you very much. And I'm sure all the parents are going to find all of these tips very useful. And thank you, all the viewers, for joining us today. I hope you have enjoyed this session and you will take this ahead in your life. And do keep following us on Baby Chakra and stay tuned for more helpful videos and parenting tips. Thank you very much, everyone. thank you, Baby Chakra, and thank you, Nivedita. Thank you, Dr. Simran. So, bye. I'm Nivedita. I work as an art and library educator. This was a very enriching session for me because I have a daughter myself, and I'm going to take these tips into the tiffins that I pack for my daughter henceforth. And I hope you do too. Thank you.